Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me, your social science teacher. So students, in this video we would like to start chapter 4 Rajput Age. So let's begin our chapter 4 Rajput Age. Parimal was watching a historical series on TV in which he saw a palace. A thought arose in his mind. Are such palaces still in existence? Who had constructed such palaces? Being curious, he went to his grandfather to get answers to this and other similar questions. His grandfather told him a few things like what is discussed below. Such palaces were constructed by kings in ancient times. We come across many such palaces, some of which are in ruins, while others are in good condition. There is a difference between the construction of structures in present times and the kind of work done in earlier ages. From these differences, we can make out the period during which a particular structure was constructed. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. To know about that era, let us know about the main Indian dynasties of that time. So students, you can see that परिमल वो एक वो एक टीवी देख रहा था हिस्टोरिकल सीरियल। उसमें बहुत सारे पैलेसेस के बारे में बताया था, तो उसमें बहुत क्यूरियस था कि ये क्या अभी भी ऐसे पैलेसेस एग्जिस्टेंस है, अभी भी है, और अभी भी ये सब चीज़ें और ये सब पैलेसेस किसने कंस्ट्रक्ट किया था। तो वो अपने ग्रैंडफादर के पास गया एंड ग्रैंडफादर से उसने ये सारे क्वेश्चंस पूछे। तो ग्रैंडफादर्स उसे ये सारी बातें बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे पैलेसेस रियली में एंशियंट टाइम में एग्जिस्टेड है, मतलब ऐसे टाइम में अभी भी वो सारे पैलेसेस है जो एंशियंट टाइम्स में किंग्स ने बनाए थे। तो एक्चुअली देखें तो पैलेसेस बनाए हैं तो उस टाइम कोई रूल भी तो कर रहा होगा वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छे कंडीशंस में उनके किंग्स ने ये सारे पैलेसेस बनाए हैं और वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी वो सारे हैं। सो वो पैलेसेस को देख के हम लोग बता सकते हैं कि पहले टाइम में कितने पावरफुल और कितने एम्बिशियस होते थे हमारे किंग्स। सो वो सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं राजपूत एज में। तो इफ़ वी वांटेड टू नो अबाउट द राजपूत एज, तो ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट द मेन इंडियन डायनेस्टीज ऑफ दैट टाइम, राइट? So let's begin. Rise of new dynasties. After the death of Emperor Harshavardhan in the middle of 7th century CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasties. Means जब एम्परर हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी 7th सेंचुरी में, तो ऐसे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे और चिफ्टियंस थे जो डिक्लेयर कर रहे थे कि वो सारे अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं एंड नाउ फाउंडेड न्यू डायनेस्टीज़, और उन्होंने फिर न्यू डायनेस्टीज़ स्टार्ट किया। The rulers of Pala dynasty and Sen dynasty ruled in Bihar and Bengal. The rulers of the Pala dynasty had added Pala to their names. So their dynasty was known as the Pala dynasty. So रूलर्स जो थे पाला डायनेस्टी और सेन डायनेस्टीज़ के, वो लोग बिहार और बंगाल में रूल करते थे। तो इसलिए वो रूलर्स पाला डायनेस्टी के थे, इसलिए वो पाला उनके नाम में ऐड करते थे, इसलिए उस डायनेस्टी को पाला डायनेस्टी बोला गया स्टूडेंट्स, राइट? Many Rajput rulers of the Chauhan or Chahman dynasty ruled over various parts of Rajasthan during 7th and 8th century CE. Of them, one branch ruled over Shakambari, a palace near Lake Sambhar, which is to the north of Ajmer. In the beginning of the 8th century, Ajay Raj ascended the throne of Shankhabari in the 12th century. He established the city of Ajmeru, which later came to be known as Ajmer.
सो स्टूडेंट्स, मेनी राजपूत, जो पुराने पुराने राजपूत रूलर्स थे, जो चौहान और चैमन डायनेस्टीज़ के, उन्होंने राजस्थान में 7th और 8th सेंचुरी में बहुत जगहों पे रूल किया था। उनमें से एक रूल उन्होंने किया था शंखमभरा में, जो लेक सांभर में है। वो सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ अजमेर में। और इन द बिगनिंग 8th सेंचुरी अजय राज ने शंखमभारी को थ्रोन अपना कब्जे में कर लिया था। कौन से टाइम में? 12th सेंचुरी में। फिर उन्होंने अजय मेरू, जो सिटी का नाम था अजय मेरू, उन्होंने इस्टेब्लिश किया और उसके बाद ये अजय मेरू सिटी का नाम अजमेर रखा गया। The rulers of the Chauhan dynasty captured Delhi, the capital of the Tomar kings, and established their supremacy. Prithviraj III or Rai Pithora was a powerful ruler of the Chauhan dynasty. He is unparalleled in the history of India. Many stories and folk songs have been written about his bravery on the battlefield. Chand Bardai, a famous poet, has written about Prithviraj Chauhan's valor in his epic Prithviraj Raso. We shall learn about the battle between Prithviraj Chauhan and Shahabuddin Muhammad Ghuri later. सो स्टूडेंट्स, जो रूलर्स थे चौहान डायनेस्टी के, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था और उस टाइम जो कैपिटल था तोमार किंग्स के हाथ में। तो उस टाइम देखिए सुपरमेसी मतलब सबसे बड़ा पावरफुल उन्होंने इस्टेब्लिश्ड किया था। तो उस टाइम के चौहान डायनेस्टी के पृथ्वीराज III और राय पिथौरा वो सबसे बड़े मेन पावरफुल रूलर्स थे। एंड ही इज़ अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री में इन दोनों पावरफुल रूलर्स का नाम हमेशा रहेगा। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ है, फोक सॉन्ग्स है, जिसमें इनकी ब्रेवरी की बातें, बैटलफील्ड में ब्रेवरी की बातें लिखी गई है। उनमें से चांद बरदाई, जो बहुत फेमस पोइट थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के रिलेटेड एक एपिक पृथ्वीराज रसो लिख दिया। हमें तो ये चीज़ पता ही है कि जो बैटल हुई थी पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गुरी के बारे में, इनके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। द गोहिल्स और गुहिल्स ऑफ मेवाड़, who were later known as the Sisodia Rajputs, hold a unique position in medieval history. It is said that Bappa Rawal established this dynasty. During the Rajput era, the Chedi dynasty ruled over Jabalpur, which is to the south of river Narmada, Madhya Pradesh. It was known as the Chedi dynasty of Kalachuri, with its capital at Tripuri, present-day Tewar. In the medieval era in Gujarat, the Rajput dynasties of the Chavras, followed by the Solankis, ruled over Anhilwada, Patan. There were many valiant rulers of this dynasty, about whom we will study later. सो स्टूडेंट्स, जो मेवाड़ के गोहिल्स थे उनको सिसोदिया राजपूत बोला जाता है। उन्होंने उस टाइम मेडिवल हिस्ट्री में उनका बहुत अच्छा यूनिक पोजीशन था, एक कैप्चर था एक्चुअली। इट इज़ सेड दैट बापा रावल ने ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था। तो जो रूल था ड्यूरिंग द राजपूत इरा, छेड़ा डायनेस्टी, ये जबलपुर में उन्होंने रूल किया था, जो नर्मदा के रिवर के वहाँ पे है, इसलिए इसको छेड़ा डायनेस्टी बोला जाता है और इसका कैपिटल था त्रिपुरी। इन द मिडिवल एरा इन गुजरात में राजपूत डायनेस्टीज ऑफ द चावड़ाज फॉलोड बाय द सोलंकीज, जो उन्होंने अनिरवाड़ पाटन में रूल किया था और इनके बहुत सारे वॉयलेंट रूलर्स भी डायनेस्टी में थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साउथ इंडिया। During the Rajput era, many big and small states were established in South India. After the demise of Pulkeshi II, his vast empire disintegrated into smaller states. The reign of many rulers of the Chalukya dynasty is noteworthy. The kingdoms of the Pallava and the Chola dynasties are also included in the states of South India. Narasimhavarma was the strong ruler of the Pallava dynasty. The emperor of this dynasty were lovers of art and literature. The Kailashnath temple of Kanchi is the best example of Pallava architecture. So students, now we will see the South India.
सो ड्यूरिंग द राजपूत, जो राजपूत इरा था, और जब इसमें बहुत बिग और स्मॉल स्टेट्स इस्टेब्लिश किए गए थे, बनाए गए थे, उनमें से एक पुलकेशी टू थे, जिनके बारे में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी। सो पुलकेशी टू ने बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेट्स बना के एक एम्पायर बनाया था, जिसको चालुक्य डायनेस्टी बोला जाता है। तो पालवा एंड छोला डायनेस्टीज़ के जो किंगडम्स थे वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, उन्हीं का राज्य चल रहा था। उनमें से पालवा डायनेस्टी में मेन थे नरसिंह वर्मा। वर्मा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर पालवा डायनेस्टी के थे। और जो एम्परर थे उस टाइम के डायनेस्टी के, उनको बहुत ज़्यादा आर्ट और लिटरेचर पसंद था, इसलिए जो कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पालवा आर्किटेक्चर का स्टूडेंट्स। ओके, The Chola dynasty also ruled in the south. Tanjore was their capital. The rulers of Chola dynasty attacked Ceylon and annexed many territories. The Cholas had a powerful navy because of which they could attack countries even across the sea. Raj Raja I adapted a very systematic way of administration in his state. He started with the measurement of land and local self-government. Apart from them, the Rashtrakuta, Chera and Pandya dynasties also ruled in South India. So it is evident that many dynasties ruled at different places during the Rajput age. There were frequent battles between them to annex each other's areas. Due to the internal conflicts, there was no unity among them. Foreign invaders took advantage of this. We will discuss the administration and culture during the Rajput era in the next unit. So students, the Chola dynasty, एक्चुअली साउथ में छोला डायनेस्टी रूल कर रहा था और तंजौर उनका मेन कैपिटल था। तो जो रूलर्स थे छोला डायनेस्टी के, उन्होंने सिलोन में अटैक किया था और ऐसे बहुत सारे टेरिटरीज़ में भी अटैक किया था। तो जो छोला डायनेस्टी के जो नेवी, पावरफुल नेवी थे उनके पास, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में भी सी के थ्रू वो अटैक करते थे। उसमें से राजा वन ने एक सिस्टमेटिक वे में अडेप्टेड किया था एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो अपना स्टेट, वो अपना राज्य बहुत सिस्टमेटिकली संभालते थे। ही स्टार्टेड, उन्होंने एक मेज़रमेंट लैंड का लिया और सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट किया, मतलब खुद से सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट किया। उसके अलावा राष्ट्रकूटा, चीरा एंड पांड्या डायनेस्टीज़ ने भी साउथ इंडिया में रूल किया था। वो बहुत सारे मेनी डायनेस्टीज़ थे जिन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में राजपूत एज में रूल किया है। एंड देयर वे फ्रिक्वेंट बैटल्स ऑल्सो, बहुत सारे बैटल्स भी हुए थे, वॉर भी हुआ था, जिनको वो एरिया जीतना होता था उनको। ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अंदरी कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से उनमें कोई यूनिटी नहीं थी और फॉरेन इन्वेडर्स इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे थे, दूसरे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो सब। तो ये बात है साउथ इंडिया के रिलेटेड। राष्ट्रकूटाज रूल्ड साउथ इंडिया। विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा केम टू पावर. Rashtrakuta means head of a state or area. It is believed that the founder of the dynasty was an officer of that community and hence the dynasty was named after him. Out of many rulers, Govind III was the most powerful king in the 8th century. He established a powerful kingdom in the Deccan. The Pandyas also ruled over South India. The Pandya dynasty is believed to be very ancient. Megasthenes, the Greek traveler, notes that females used to rule in this community. The inscriptions of Emperor Ashoka also contain references to the Pandyas. The Pandyas ruled in present-day Madurai and Thirunelveli in Tamil Nadu. Cheras ruled over South India. Chera is now known as Kerala. In ancient time, Kerala was part of the Tamil state. Later on, Kerala or Malayalam state separated. Kepalputra Rajya is mentioned in the inscriptions of Ashoka. Athan too was the first strong ruler of this dynasty. Cheran Satungvan was a powerful ruler of this dynasty. So students, राष्ट्रकूटा साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे। उस टाइम चालुक्य डायनेस्टी
गिर रही थी, मतलब चालुक्य डायनेस्टी का जो पावर था वो चला जा रहा था। राष्ट्रकूटा मीन्स क्या है, हेड ऑफ अ स्टेट, स्टेट का सबसे मेन व्यक्ति। इट इज़ बिलीव, ये माना जाता है कि जो डायनेस्टी के फाउंडर है उनको ऑफिसर, वो कम्युनिटी के ऑफिसर के नाम से ही वो डायनेस्टी का नाम रखा जाता था। आउट ऑफ मेनी रूलर्स, ऐसे बहुत सारे रूलर्स के छोड़ के गोविंद थ्री वो सबसे पावरफुल किंग थे। एट्थ और 8th सेंचुरी में उन्होंने पावरफुल किंगडम डेक्कन में इस्टेब्लिश किया, बनाया। वैसे ही पांड्याज़ ने भी साउथ इंडिया में रूल किया है, इसलिए पांड्या डायनेस्टी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल और एंशंट माना जाता है। मेगास्थेनिस जो ग्रीक ट्रेवलर थे, उन्होंने अपने नोट्स में लिखा है कि इस पांड्या डायनेस्टी में फीमेल कम्युनिटी ही ज़्यादातर रूल करते थे। इसमें देखिए तो अशोका थे जो पांड्याज़ इंस्क्रिप्शंस में आए हैं। पांड्याज़ ने मदुराई और थिरुनेली जो तमिलनाडु है उनमें रूल किया है। चेराज रूल्ड ओवर साउथ इंडिया, चेराज में भी इन्होंने रूल किया है। नाउ डेज चेरा मीन्स केरला। So in ancient time, Kerala was also a part of Tamil Nadu. Later on, because of the Kerala or Malayalam, it have been separated, students. इसलिए केपल पुत्र राज्य have been mentioned in the inscriptions of Ashoka. इसलिए स्टूडेंट अथान टू वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रूलर थे डायनेस्टी के, इसलिए चेरन सितुंगवान वो भी सबसे पावरफुल रूलर्स थे इस डायनेस्टी के। सो स्टूडेंट्स, आपको बीच बीच में लगेगा थोड़ा ये बोरिंग, बट एक्चुअली दिस इज़ वन टाइप ऑफ नॉलेज ऑफ द एंशियंट टाइम। सो if you are very much interested to know about the ancient, so you should have to listen it carry forward, and you have to listen it because it is coming in your examination. So now we will talk about pride of Rajput rulers. Rajputs were very brave. They felt proud to give up their lives for their country, to die but never fear, to protect those who seek refuge, to speak the truth and fight for truth were their special traits. Rajput women, Rajputani, were known for their chastity and fearlessness. They sent their husbands, sons, and brothers into the battlefield with a smiling face. They were so brave that if need be, they would fight on the battlefield. They preferred Johor to burn alive if their husbands were defeated or attained martyrdom in wars. The heroic stories of the Rajput age are engraved in golden letters in the history of India. हम आप सबको पता है कि जो राजपूत है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं। वो अपनी जान गंवा देंगे अपनी कंट्रीज़ के लिए, अपने कंट्री के लिए, और उनको कहीं किसी से भी डर नहीं लगता है। वो अपने लोगों को सबसे पहले बचाएंगे और कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और सच्चाई के लिए वो हमेशा लड़ेंगे। वैसे ही सेम टू सेम राजपूत वुमेन जो होते हैं, राजपूतानी जिनको बोलते हैं, वो उनको भी फियरलेस, एकदम किसी से डरते नहीं है वो लोग, और उनके हस्बैंड्स को, सन को, ब्रदर्स को बैटलफील्ड मतलब वॉर में स्माइलिंग फेस के थ्रू भेजते हैं। एंड वो लोग इतने ब्रेव होते हैं कि बाई चांस उनके हस्बैंड्स या उनके हस्बैंड्स डिफ़ीट हो जाते हैं वॉर में, तो वो लोग जौहर करते हैं। आप लोग ने ये नाम सुना ही है, जौहर मतलब टू बर्न अलाइव, जीते जी अपने आप को आग में समर्पित कर देते हैं। ऐसे उनके हस्बैंड्स की मृत्यु हो जाती है या फिर उनके हस्बैंड डिफ़ीट हो जाते हैं सामने वॉर में। तो ये है प्राइड, मतलब राजपूत्स बहुत प्राइड वाले होते हैं। जान जाए पर वचन ना जाए वैसे टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ वेरी मच ग्रेट लेजेंड्स, यू कैन से दैट। एंड ये सारे हिस्टोरिक स्टोरीज़ राजपूत एज के जो है वो सारे गोल्डन लेटर्स में इंडिया के हिस्ट्री में लिखे गए हैं। मतलब हम लोग जब कभी भी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तब हम लोग ऑब्वियसली ये सब बातें ज़रूर याद करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वर द चैप्टर 4, द राजपूत एज. So our chapter 4 is now completed. My work is done. Now it's your work. So students,
Your homework is that read the chapter 4 Rajput Age, the whole chapter one more time. Then you will got some points or you will have any query, so you can ask me there. और आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप एक और बार रीड कर लोगे तो आपके डाउट्स क्लियर भी हो सकते हैं. ओके, सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देयर, stay home, stay safe. With the help of these line, I would like to pack up. So bye bye.